الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الحبيب العفيف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار صلاۃ و سلام اس مقدس نبی کی بارگاہ میں جو رحمت بن کر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بہت اچھے سامعین ہیں. جتنا اچھا آپ سن رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اور اچھائی آپ کے سننے میں آ جائے. آپ ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں، پوری کی پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے. کچھ کام کی باتیں میں آپ کے درمیان رکھنے کی سعادتیں حاصل کروں گا. میرے جملے تلخ ہوں گے مگر باتوں میں سچائی ہوگی. حق بات کروں گا، سچی باتیں آپ کے درمیان رکھوں گا. سچی باتیں تلخ معلوم ہوتی ہیں، حق باتیں کڑوی معلوم ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر سچ بولنے سے کسی کو تکلیف ہو تو سچ بولنا چھوڑ دیا جائے. یہ دستور نہیں ہے. ہر دور میں سچ بولا گیا ہے، آج بھی بولا جا رہا ہے، صبح قیامت تک سچ بولا جائے گا. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں جتنی جماعت ہے ہر جماعت اپنی قوم کو دھوکہ دے رہی ہے، ہر جماعت اپنی قوم کو فریب دے رہی ہے. مگر علماء کی جماعت ایسی ہے جو اپنی قوم کے ساتھ فریب نہیں، غداری نہیں، مکاری نہیں. ہر دور میں علماء کرام کی جماعت نے حقانیت کا اعلان کیا اور رہتی دنیا تک علماء کی جماعت حق بولتی رہے گی، سچ بولتی رہے گی. آج میں تھوڑی سی باتیں آپ کے درمیان رکھوں گا. باتیں سننے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا مولوی مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے، مولوی مجھ کو نشانہ بنا رہا ہے. مگر میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کبھی کی آپ سے کوئی دشمنی بھی تو نہیں ہے. ایک بار آیا تھا، کیا آیا کیا گیا پتہ بھی نہ چلا. دوسری بار آیا بھاگل پور سے امبیکا پور آیا. اب دیکھتا ہوں کہ کس قدر آپ کو اپنی گفتگو سے پور کر سکتا ہوں. اگر آپ نے میری باتیں سمجھ لیا اور اس پہ عمل کر لیا آپ نے تو آپ کی زندگی میں انقلاب انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے گا. آج یہ تھوڑی سی باتیں کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ دو تین شعر نعت شریف میں پڑھوں، صرف اس تصور کے ساتھ کہ نعت رسول روح کی غذا ہے. نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، نعت سننا بھی عبادت ہے. میں اس نعت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ نعت پڑھے تو کوئی فلمی ایکٹر کا کردار یاد آئے. میں اس نعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس نعت شریف کی بات کر رہا ہوں کہ جب نعت پڑھی جائے تو نعت سن کر گنبد خضرا کا خیال آ جائے.
नात कर मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी याद आ जाए। आज के इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। सुने, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। मैंने नात पढ़ने का वादा किया है, ये नहीं कहा कि तरन में नात सुनाऊंगा। नात शरीफ सुनिए। अल्लामा जमाल साहब, हाफिज जमाल साहब, आपकी खुसूसी तवज्जो। उलमाए किराम मेरे नूर पे है। इस वक्त मैं तारुफ नहीं करा रहा हूँ, वक्त कम है। मैं चाहता हूँ जिस काम के लिए आया हूँ सुने आप। ये जितने मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज्यादा सब बड़े भी हैं, मुझसे ज्यादा होशियार भी हैं, लेकिन मुझको चूंकि बुला लिया गया है तो मैं मेहमान हूँ, इसलिए ये उलमाए किराम मुझे दुआओं से नवाजेंगे। तवज्जो से सुनिए। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी है आपकी, और सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, और सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, और सरकार बस आप लोगों की तरफ से ये शेर, सरकार फुलसरात पर तशरीफ लाइए, सरकार फुलसरात पर तशरीफ लाइए, सरकार राज रखिए, ये उम्मत है आपकी, क्या कहने नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है आप इको कम कर दीजिए, मशीन से साउंड दीजिए ताकि मेरी बात ये लोग समझ सकें, और चूंकि आपको साउंड कम रखना है, जाहिर है आप कंट्रोल में रहिए, और जहां तक मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाऊं, और आवाज ऐसी हो कि मेरी एक एक बात ये लोग समझ सके। तवज्जो से मेरे एक एक लफ्ज को आप समाअत करेंगे। इसमें कहीं पर कोई बनाव श्रृंगार नहीं है, कहीं पर कोई तसन्नो नहीं है, कहीं रियाकारी मक्कारी नहीं है। एक एक लफ्ज आपकी खातिर में पेश करता हूँ। हजरात अगर सच्चाई हो तो कबूल कीजिएगा, भले मेरे जुमले तल्ख होंगे मगर आपकी भलाई की खातिर बात करूंगा। ये गालिबन क्या नाम है जलसे का हजरत? इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारे उन्वानात हैं इस ताल्लुक से जिस पर मैं खिताब कर सकता था, जहन में खाका बहुत सारा तैयार कर रखा था, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। हजरात गिरामी, जलसे हर दिन नहीं होते, कभी कभी जलसे होते हैं। इस जलसे का कोई न कोई मकसद है, बेमकसद कोई काम होता भी नहीं है। जलसे का मकसद ये नहीं कि इंजॉय हो, जलसे का मकसद ये नहीं कि ज़हनी आवारगी हो, जलसे का मकसद ये नहीं कि ज़हनी अय्याशी हो, जलसे का मकसद ये नहीं होता कि मेले में चक्कर लगाया जाए, जलसे का मकसद ये होता है कि झूठे को सच्चा बनाया जाए, बदकिरदार को नेकोकार बनाया जाए, शराबी को उससे तौबा कराया जाए, हरामखोर को हलाल खाने की तलकीन की जाए, जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता दिखाया जाए, जो झूठ बोलने का आदी हो सच बोलने का आदी बनाया जाए। जलसे का ये मकसद होता है। आप बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का जायजा जब लेंगे तब आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जिक्र रसूल की महफिल क्यों सजाई जाती है। आजकल के जलसों का मिजाज ये हो गया है कि जलसे में लोग पूरी
پوری رات نعرہ لگاتے ہیں، جلسے میں لوگ پوری رات کہے لگاتے ہیں، چٹکلے سنائے جاتے ہیں، کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا خبردار خبردار، جب جلسے کیا کریں تو ہنسنے ہنسانے کا ماحول پیدا نہ کریں۔ جب آپ کے یہاں کوئی خطیب آئے تو انہیں کہیے کہ پوری رات صرف غوث و خواجہ سرکار اعلیٰ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز سرکار مفتی اعظم ہند سرکار تاج الشریعہ کے نام کے نعرے لگاتے لگاتے پوری رات ختم ہو جاتی ہے۔ میں سب کو اپنے سر اور آنکھوں پہ رکھتا ہوں، سب کی عظمتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کہو گے؟ 10 سال 20 سال کے بعد جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، ان بچوں کے سامنے اگر صرف انہی لوگوں کے نام لیے جائیں گے، ان بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ 20 سال کے بعد انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے مصطفیٰ کا نام کیا ہے، ہمارے آقا کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کون ہے، ہمارے پیغمبر کون ہے، عمر کس کا نام ہے، ابو بکر کس کا نام ہے، عثمان اور علی کس کا نام ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جب کوئی خطیب آئے تو آپ ان سے کہیے جہاں تم غوث کی بات کرتے ہو، جہاں خواجہ کی بات کرتے ہو، جہاں اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو، جہاں تاج الشریعہ کی بات کرتے ہو، وہی مصطفیٰ کی سیرت بھی بیان کیا کرو تاکہ بچوں کو اپنی زندگی گزارنے کا شعور پیدا ہو۔ کیا کہنے ماشاءاللہ، توجہ سے میرے جملے سنیں گے آپ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے کا وقت کہاں ہے آپ کے پاس؟ ہم مسلمان ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے لوگ سن رہے ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو ذرا؟ ماشاءاللہ حضرات ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں نا، مسلمانوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اسلامی زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، مذہبی زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، اس بات کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس بات کے علم کے لیے کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ کتاب پڑھنا ہوگا، سیرت کی کتابیں پڑھیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، مسائل کی کتابیں پڑھیے، مگر ہمارے پاس پڑھنے کا وقت کہاں ہے؟ ہمارے پاس فرصت ہی لگی ہے، ہمیں فرصت ہی لگی ہے۔ صبح ہوتی ہے تو دکان چلانے والا دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، تاجر اپنے تجارت کا سامان لے کر نکل جاتا ہے، ڈیوٹی کرنے والا سروس کرنے والا اپنی ڈیوٹی پر نکل جاتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا اپنے کھیت پر چلا جاتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ شام کو جب گھر واپسی ہوتی ہے انسان تھکا ہارا ہوتا ہے، انسان آرام کرتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ مطالعہ کر سکے، اتنا وقت نہیں ہے اس کے پاس کہ کتاب پڑھ سکے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم مذہبی زندگی کیسے گزاریں گے؟ حضرات بزرگوں نے اسی لیے جلسے کرنا شروع کیا، رات اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، تم رات کے حصے میں تھوڑی دیر آؤ، ذکر رسول کی مسجد سجے گی، 1 گھنٹے کی تقریر سنو جو 1 مہینہ مطالعہ کرنے کے بعد معلوم نہیں ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کی تقریر میں اتنی باتیں معلوم ہوں گی۔ اگر جلسے میں آنے کے بعد بھی تم کہے لگاتے رہے تو پھر زندگی گزارنے کا سلیقہ کہاں سیکھو گے؟ زندگی گزارنے کا شعور پیدا ہو سکے گا؟ اس لیے جلسے میں آنے کے بعد اچھی باتیں سننے کے عادی بن جائیں ہم، علماء کرام کی باتیں محبت سے سنیے۔ اب آج کے میں اپنے عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کروں، باتیں میری تلخ ہوں گے مگر 10 منٹ سنیے، فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں لیجئے گا، میں جب کسی نتیجے پر پہنچوں تب آپ فیصلہ لیں گے کہ مولوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بلا تاخیر آپ سماعت کریں۔ حضرات گرامی، مجھے اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ میری گفتگو سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، اس خیال کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ خدا کے بندوں کو راستہ دکھا رہا ہوں میں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہی میری دنیا اور آخرت کی منجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ توجہ ہے آپ کی؟ کتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھا کے بتائیے؟ آپ کو زیادہ نعرہ بھی نہیں لگانا ہے، آپ جتنی دیر نعرہ لگاتے ہو وہ نعرہ کا وقت بچانا ہے۔ آپ کو میری بات سننا ہے غور سے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتا ہے کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا، زیادہ مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا، مال کی طلبی نے تجھے ہلاک کر دیا۔ انسان زیادہ مال کے چکر میں ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، زیادہ مال کے چکر میں انسان تباہی کی طرف جا رہا ہے، زیادہ مال کے چکر میں انسان بربادی کی طرف جا رہا ہے، انسان کثرت مال کی طرف میں ہلاک ہو گیا، انسان ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ مال جمع ہونا چاہیے، پیسے جمع ہونا چاہیے، دولت جمع ہونا چاہیے، سرمایہ جمع ہونا چاہیے،
बैठे हैं, बाकी बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तवज्जो से मेरी बात सुनिए, मैं आज उलमाए किराम की खुसूसी दुआएं चाहता हूँ। देखिए शायद मैं कुछ अच्छी बातें सआदतें हासिल कर लो। अल्लाह फरमाता है कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। इंसान माल की ज्यादा चक्कर में तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, हिलाकत की तरफ जा रहा है। माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा करो, पैसे जमा करो, सरमाया जमा करो, जायदाद बनाओ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह फरमाता है कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। इंसान पूरी जिंदगी माल के चक्कर में गुजार देता है। माल जमा करो, माल जमा करते करते इंसान कब्र में चला जाता है। अल्लाहु अकबर। इंसान ये नहीं सोचता हम माल जमा करने के चक्कर में कहाँ जा रहे हैं। पैसा जमा होना चाहिए, दौलत बढ़नी चाहिए, दौलत जमा करो। दौलत जमा करते करते इंसान ये नहीं सोचता है जायज तरीके से जमा हो रहा है या नाजायज तरीके से पैसे जमा हो रहे हैं। जायज तरीके से हो रहा है, हराम तरीके से पैसा आ रहा है या हलाल तरीके से पैसा आ रहा है, आदमी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। बस पैसा जमा होना चाहिए, दौलत जमा होना चाहिए, सरमाया जमा होना चाहिए। अरे भाई मेरी तरफ आप देखिए, जिसका जो काम है उसको कर लेने दीजिए। ये माइक अगर बंद भी हो जाए तो आपका खादिम आपसे बात कर लेगा। मैं तो कहता हूं बंद कर दीजिए ताकि ये लफड़ा ही खत्म हो जाए। कोई नहीं कहेगा कि आवाज को कम करो, मेरी आवाज क्यों ही आप तक पहुंचेगी। बंद करना है कर दीजिए, अगर मैं बोलूंगा आपकी खिदमत करूंगा। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्तों मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इंसान माल जमा करने के चक्कर में ये सोचता भी नहीं कि कैसे पैसा आ रहा है, कैसे दौलत जमा हो रही है। जायज तरीके से पैसा आए या नाजायज तरीके से आए, जमा होना चाहिए, दौलत जमा होना चाहिए। अगर प्यारे मुसलमानों लोगों की आंख बंद होती है, अल्लाह फरमाता है यहाँ तक तुम कब्रों तक जा पहुंचे। इंसान कब्र में चला जाता है, दौलत बड़ी रह जाती है, दौलत भरी रह जाती है, सरमाया पड़ा रह जाता है, आपकी बिजली बड़ी रह गई, आपकी मारुति कार दरवाजे पर खड़ी रह गई। हम कब्र में जा पहुंचे। शायद हमने ये सोचा कि चलो जमा करके रखो, बच्चे ऐश करेंगे। आज से कहता हूँ अब जब बच्चों ने जिंदगी गुजारना शुरू किया, चंद ही महीने गुजरे थे, माल जमा करते करते उसी राह पे भी बच्चे भी चल पड़े। चलो जैसे भी आ रहा है पैसा आना चाहिए। इंसान का वो बच्चा भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारता चला जा रहा है। कुछ ही दिनों के बाद उसकी भी आंख बंद हो जाती है, वो भी कब्र में पहुंच जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ ये दौलत इंसान को कहाँ पहुंचा दिया है, ये सरमाया इंसान को कहाँ पहुंचा दिया। इंसान को दौलत की तरफ कहाँ पहुंचा रही है, इंसान को दौलत कहाँ से कहाँ तबाही की तरफ लेकर जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जब इंसान के पास दौलत बढ़ती है आदमी गुनाह का आदी होता है, दौलत बढ़ती है तो खताओं का आदी होता है, दौलत बढ़ती है तो आदमी अय्याश होता है। आप लोग कुर्सी लेकर करीब आइए, बच्चों सिमट जाओ, तुम करीब आ जाइए। तुम लोग सिमट जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप लोग कुर्सी लेकर के आगे बढ़ जाइए। जितनी मोहब्बत आपके बेटों से मदरसे के असासा करते हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ अगर आपका बच्चा छोटा हो, रात का आधा पहर निकल गया, उसे हाजत हो गई हो, बाप को उठाए सोए हुए उठिए, हाजत है, फारिग होना है। वो अपनी जुबान में बात करेगा ना, बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त बाप को। अभी सोया, अभी तो नींद आई, परेशान कर रहा है। एक बार गया फारिग करा के, थोड़ी देर के बाद फिर उसे महसूस होता है, उठिए ना, बड़ा जोर का लगा, हाजत है, जाना है। बदतमीज कहीं के, शैतान कहीं के, दिन भर तो मेहनत करता हूँ, रात में भी चैन से सोने नहीं देता। सच बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ। अब आइए पलट के मदरसा आए, मदरसे में रात के 1 बजे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बच्चे कहीं अटक गए, बात समझ में नहीं आ रही, मसला पेचीदा आ गया, कहाँ जाए। इमाम साहब अपने उस्ताद के दरवाजे पे पूछते हैं, जिसने
दिन भर अपने बच्चों के लिए वक्त दिया, थके हारे आराम कर रहे हैं, मुताला दिन में करके सोए हैं, रात में मुताला करके सोए हैं कि दिन में बच्चों को पढ़ाना है, रात के 1 बजे बच्चा दस्तक देता है, हजरात जरा उठिए हुजूर, दरवाजा बड़ी मोहब्बत से आके वो उस्ताद बड़ी मोहब्बत से आके दरवाजा खोलते हैं। क्या बात है बेटे? हुजूर पढ़ रहा था, बात समझ में नहीं आ रही है, मसला अटक गया है, मसला बड़ा पेचीदा है, गुत्थियां सुलझती नहीं हैं, उलझ चुका हूँ, समझा दीजिए। मुस्कुराते हुए बच्चे को सामने बिठाता है, उलझे हुए हालात समझाना शुरू कर देता है, पेचीदा मसाइल समझाना शुरू कर देता है, और जब उससे फारिग होता है तो ये कहकर रुखसत करता है, अल्लाह तुझे कामयाब करे, अल्लाह तुझे कामयाब करे। तुम रात के 1 बजे उठने में दिक्कत महसूस करते हो, मगर उस्ताद तेरे बच्चों से इतना प्यार करता है कि रात के किसी हिस्से में जगाए वो मुस्कुरा के अपने बच्चों का इस्तेमाल करता। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देते हो इन उलमाए किराम को आप? बताना कि ना मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के सदर सेक्रेटरी मेंबरान को और तमाम असातिज़ा किराम को। कितनी मेहनतें आपने की, मदरसा गौसिया में इल्म हासिल करने वाले तलबा कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेने के बाद अब आपकी खिदमत में हज़रात गिरामी, आज नहीं थोड़ा इंतजार करो, महसूस करोगे कि ये हीरा से कम नहीं, ये अनमोल है, इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक बात पूछ लूं, बात बताइए, आपके घर मेहमान आते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज मैंने जो थोड़ी देर की गुफ्तगू की है, अपनी दौलत से इतनी मोहब्बत ना करो कि आप जन्नत से दूर हो जाओ, खुदा की रजा से दूर हो जाओ, रसूलुल्लाह आपसे नाराज हो जाए, इतनी दौलत से मोहब्बत ना करो। आप दौलत कमाओ, मोहब्बत रसूल से करो, दौलत कमाओ, मोहब्बत अल्लाह से करो, दौलत कमाओ, दीन की खिदमत करो, दौलत कमाओ, दौलत से गरीबों का सहारा बनो, दौलत कमाओ, बेवाओं का सहारा बनो, दौलत कमाओ, रसूलुल्लाह के मेहमानों को प्यार दो, उनकी खिदमत करो, समझ जाएगा तेरी दौलत काम आ गई। आपके घर मेहमान आते हैं, मेहमान जब आए, ये बताओ क्या सूखी रोटी खिलाते हैं आप? क्या खिलाते हैं? क्या बोलना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए? धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। थोड़ी सी कमी हमारे अंदर भी है कि हम बच्चों को घर में तरबियत देंगे तभी ना बच्चा तरबियत याफ्ता होगा। बहरहाल इन बातों की तरफ अभी मैं नहीं जा रहा। आपके घर मेहमान आए, या तो आप चिकन लाएंगे, मटन लाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, नाश्ते का सामान लाएंगे, बड़े हल्के में मत लीजिए। जो बात कहना चाहता हूँ गौर से सुनिएगा। 1000 एक मेहमान के पीछे खर्च, 1000 का खाना खाता तो नहीं हो, घर के सारे लोग मिलकर के खाते हैं, तब 1000 खर्च होता है या 2000 खर्च होता है, मगर एक मेहमान के आने से 2000 खर्च हो रहा है। आपकी पेशानी पे बल नहीं आता, बोलो, मुस्कुराते रहते हो, मेरा मेहमान है, बड़ी इज्जत के साथ उन्हें देखते हो आप, अच्छा बिस्तर लगाते हो आप, उसके वजू का इंतजाम करते हो आप, उसके रहने का इंतजाम करते हो आप, अच्छा बिस्तर लगाते हो आप। और अगर आपका पड़ोसी आपके मेहमान को लेकर घर जाए और फिर वो आपके मेहमान को चाय पिला दे तो आप और मेहमान की इज्जत किया मेरे पड़ोसी ने, मेरे मेहमान को खिलाया मेरे पड़ोसी ने। मैं आपसे एक बात अब ये कहना चाहता हूँ, अपने मेहमान के पीछे 1000 खर्च करते हो, 2000 खर्च करते हो, अगर एक रोज पूरा दिन रुक गया, 3 वक्त खिलाना पड़े तो 2-3 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, मगर कोई परेशानी नहीं, बल नहीं पेशानी पे। मेरे दोस्तों, मुस्कुरा के वेलकम करते हो, मुस्कुरा के मेहमान नवाजी करते हो। अब आप बताइए मुझको, कोई गारंटी है आपके पास कि जो आपका मेहमान है
वो नेकोकार है, तहज्जुद गुजार है, तकवा शिआर है। हो सकता है आपका मेहमान शराबी भी हो, आपका मेहमान जुआरी भी हो, आपका मेहमान बदकार भी हो सकता है कि नहीं? मुझे एक बात बताइए, आपका मेहमान ज्यादा मोहतरम है कि नबी का मेहमान मोहतरम है? आपका मेहमान मोहतरम या नबी का मेहमान मोहतरम? किसका? नबी का। आपका मेहमान चल के आपके घर आए तो बस चला आए, मगर नबी का मेहमान आपके घर आए तो घर आते वक्त फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछा देते। ये नबी का मेहमान है। आपका मेहमान आपके घर आए तो साथ बरकत आए ना आए कोई गारंटी नहीं। नबी का मेहमान आए तो बरकत भी लेके आए, रहमत भी लेके आए। सुभान अल्लाह। आप अपने मेहमान पे अगर 2000 खर्च कर सकते हो तो अपने नबी के मेहमान के लिए कितना खर्च होना चाहिए? 4000। यही सही कहा उन्होंने। जाहिर है अगर हम गुनहगार मेहमान पर, अपने मेहमान पर 2000 खर्च कर सकते हैं, ये तो मेरे मुस्तफा का मेहमान है, हमें इससे डबल खर्च करना चाहिए। मैं चंदा करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ। मदरसा गौसिया आपके यहाँ है, यहाँ नबी के मेहमान रहते हैं, उन्हें खाने की जरूरत है, उन्हें रहने की जरूरत है, उन्हें इलाज की जरूरत है। बोलो है कि नहीं है? ये नबी का मेहमान है। कोई एक आदमी सिर्फ मुझको ये बताए, मेरे दोनों बुजुर्ग हजरत को आप ये साबित करके बताएं कि थोड़ी देर की गुफ्तगू का असर ये है कि हम अगर अपने मेहमान पर 2000 खर्च कर सकते हैं तो नबी के मेहमान पे हम 5000 खर्च करेंगे। कोई एक आदमी 5000 मेहमान के लिए देगा? एक आदमी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदरसा गौसिया, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर अमीन मिल्लत। माशाअल्लाह। ये मेरे दो, एक हमारे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे थे और एक वो साहब, दरअसल आइए करीब, हजरत से दुआएं ले लीजिए आप। माशाअल्लाह। दरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चाचा जान 5000 नबी के मेहमान के लिए, और ये एक भाई साहब आ रहे हैं, ये भी 5000 रुपया अपने नबी के मेहमान के लिए। मदरसा गौसिया में मेरे मुस्तफ़ा के मेहमान पलते रहें, खुश रहें, बीमार हो तो उससे इलाज हो, खाने का इंतजाम हो। भाई अरे हजरत से मुसाफा करके दुआएं ले लीजिए। सुभान अल्लाह, मामूली बात नहीं है। अच्छा, दो आदमी ने 5-5 हजार कहा है। अल्लाह को ताक पसंद है। मैं चाहता हूँ कोई एक आदमी और कहे कि 5000 मेरी तरफ से मेरे आका के मेहमानों के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जानते हैं ये कौन आ रहे हैं? आज से 3 रोज कबल जनाबे मुसफ्फर साहब मरहूम, जिनका इस दुनिया से जाना हुआ, रुखसत हो गए, इंतकाल फरमा गए, ये उनके साहबजादे हैं। हम लोग सब मिल के दुआ करें अल्लाह ताला उस मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ने बख्श दिया है तो फिर उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 लोग हुए ना, 3 लोग हुए जी। मेरे नबी के 4 यार हैं ना, आका को उन चारों से बड़ी प्यार था। कोई है ऐसा चौथा आदमी खड़े होके अच्छा माशाअल्लाह। मैंने तो 4 कहा। आ जाइए हजरत से मुसाफा की। एक पीछे भाई साहब पीछे, माशाअल्लाह। और क्या पंजतन का असर है जी, क्या तसर्रुफ है पंजतन पाक का। सुभान अल्लाह। मैंने 5वां को बुलाया भी नहीं था, पंजतन पाक का सदका किसी को मिल गया, वो 5वां आदमी भी उधर से आ गया, भेज दिया उन्होंने। वो सखी घराने के है ना, सखी घराने के, इधर सखी घराने के। सुभान अल्लाह। 5 लोग हो गए। सुभान अल्लाह। मुझको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि हाँ आप अपने मेहमान से कम नबी के मेहमान से ज्यादा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब बात आ ही गई तो एक आदमी को और मैं चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा है, ख्वाजा की निस्बत छठी। नारे तकबीर,
की। ख्वाजा के नाम पे देर नहीं होती है। नारे रिसालत। आलम भाई आ रहे हैं, 5000 ये भी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, 6 लोग हो गए। ख्वाजा ने बड़ी जल्दी भेज दिया, ख्वाजा गरीब नवाज। अच्छा, मेरा ख्वाजा तो ऐसा है ना जी, कोई भी जाए दर पे खाली नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि कोई आदमी ऐसा हो जो 7वां शख्स हो। और क्यों मालूम है? जमीन के 7 तबक, आसमान भी 7। अल्लाह को ये अदद बड़ा प्यारा है, तो इस जो 7 आसमान भी बनाया और जमीन के तबक भी 7 बनाए, अल्लाह को ये अदद बड़ा प्यारा मालूम होता है। मैं चाहता हूँ जो अल्लाह को प्यारा हो, आप में से किसी को भी वो प्यारा हो जाए। 7वां आदमी कोई 5000 दे, कोई ना कोई तो होगा। 7वां आदमी कोई ना कोई होगा, जरूर होगा इंशाअल्लाह। आएगा वो, 5000 की रकम देगा। या अल्लाह, इतनी देर दुरूद शरीफ पढ़िए तो देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो शुरू ही किया था, और अगर छोड़ देते वही ना, अब ऐलान करने के चक्कर में दुरूद शरीफ अगर छोड़ देते, मालूम है क्या होता? आगे कुछ बात नहीं बनती थी। माशाअल्लाह। हज़रात, वक्त ज्यादा हो भी गया, पर मीटिंग का जो वक्त था वो भी गुजर रहा है। अब हम इस वक्त ये चाहेंगे, हाँ हाँ, फिर भी अब हालात का तकाजा ये है कि आप समझौता कीजिए। रस्मी तौर पर हम मजलिस का इख्तिताम करना भी चाहते हैं। 2 बुजुर्ग हमारी निगाहों के सामने, अब जो प्रोग्राम का शेड्यूल बना हुआ है उस हिसाब से आपका सारा काम होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं आपकी खिदमत में चंदा करने के गरज से नहीं आया था, बस देख लिया कुछ काम हो गया। मदरसा गौसिया में जो बच्चे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो मेरे आका के मेहमान हैं। उन मेहमानों से भी मोहब्बत कीजिए, और नबी के मेहमानों की जो तरबियत के लिए लगे हुए हैं, उन उलमाए किराम से भी सच्चा प्यार कीजिए, सच्ची मोहब्बत पेश कीजिए, उनसे मिल के रहिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ताला इसका अज्र आपको अता फरमाएगा। जिन लोगों ने ताउन किया नबी के मेहमानों की खिदमत के लिए, अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल व मकबूल फरमाए। सबकी कमाई में बरकतें अता फरमाए, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। हज़रात, मैं ये कह के रुखसत हो रहा हूँ। हज़रात गिरामी, मोहब्बत अल्लाह और रसूल से हो। दौलत कमाइए, मगर दौलत को गलत जगह में इस्तेमाल न कीजिए। दौलत इंसान को शराबी बना दे, इंसान को जुआरी बना दे, इंसान को बदकिरदार बना दे। दौलत जब आदमी को फाहिशा के अड्डे पे भेज दे, तो समझ लेना ये दौलत इंसान को जहन्नम की राह पे लगा चुका है। नहीं नहीं, हमें दौलत पाकर जहन्नम की राह पे नहीं चलना है, हमें दौलत पाकर के जन्नत की राह पे लग जाना है, अल्लाह और रसूल की रजा हासिल करना है। मैंने जो कुछ कहा, कहने में कहीं पर कोई लफ्ज़ कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हो। या अल्लाह, मेरी खताओं को माफ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात, आप देख रहे हैं कि नंबर शरीफ पर 2 अजीम हस्तियों का पूरा जलवा करी है। शहजादे गौसे आज़म हुज़ूर इमाम मिल्लत तशरीफ़ फरमा।